Project Lion and Project Dolphin. August 15, 2020, the Prime Minister of India, Mr. Modi, has announced that Center is planning to replicate the Project Tiger in the form of Project Lion and Project Dolphin. तो भारत में शीघ्र ही बाघ परियोजना के तर्ज पर प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन आरंभ किए जाएंगे. These projects will be launched by the Government of India to promote and conserve biodiversity. इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत में जैव बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण करना होगा. So what is biodiversity? The diversity of living beings around us in the form of plants and animals. So जैव विविधता का मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी विविधता हमारे आसपास है, पूरे विश्व में है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं. And the Project Dolphin will focus not only the river dolphins but also the sea dolphins. And no doubt it will boost the ocean and the sea related biodiversity. And it will also boost the tourism in India. And under Project Lion, there will be infrastructural development for the lion. There will be more security of the Indian lion. तो जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो भारत की रिवर डॉल्फिन और सी डॉल्फिन दोनों को कंजर्व करेगी, भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देगी. और जो प्रोजेक्ट लॉयन है भारत में बाघों के लिए जो भी आवश्यक अधोसंरचना है उसका विकास करेगा. एंड ऑब्वियसली दीज टू प्रोजेक्ट्स विल प्रमोट द टूरिज्म एंड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स. नाउ सिस्टमेटिकली वी विल सी about the Project Lion and the Gangetic dolphins. So to begin with, Project Lion. In India, we find the Asiatic lions which are found on the western part of India in the state of Gujarat, especially around Saurashtra. तो ध्यान दीजिए, भारत में जो लॉयन है यानी बब्बर शेर हैं भारत के पश्चिम हिस्से में जो गुजरात प्रांत है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में पाए जाते हैं. And especially they are found in Gir National Park. And this Asiatic lion is also known as the Panthera leo, and they are in the IUCN Red List, that is International Union for the Conservation of Nature has listed them in Red List. यानी इस सूची को खतरे में बताया गया है. It is under the endangered species. जो बेसिकली लॉयन होता है, इट्स हाइट में बी अप टू 2.9 मीटर्स फ्रॉम नोज टू टेल, यानी लगभग ये 8 से 9 फीट तक का लंबा हो सकता है अपनी नाक से लेके पूंछ के अंतिम हिस्से तक. एंड द वेट ऑफ ए मेल लॉयन कैन बी बिटवीन 160 टू 190 kg. और एक शेर का जो वजन है करीब 150 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है, where a female can be weighing from 110 to 120 kg. And the lifespan of a lion can be from 18 years to 20 years. And as you know, their diet consists of deer, antelope, boar and cattle. And मुख्यतः ये हिरण और मवेशी आदि आदि को खा के अपना गुजारा करते हैं. And the Gujarat Forest Department has released a very encouraging report. आप देख रहे हैं in 2020 now in India we have 159 adult male lion, 262 female lion. यानी आप देख रहे हैं कि जो महिलाओं इनमें जो स्त्री लॉयंस की संख्या है वो देख रहे हैं पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है. यानी लिंगानुपात महिलाओं की इनकी काफ़ी आप देख रहे हैं फेवर में है. And around 115 sub-adult and 138 cubs है. तो in India, in Gujarat now we have 674 lions, and in India only lions are found in Gujarat only. तो ये बड़ी encouraging बात है. और कुछ पिछले अगर हम कंपेयर करें from 2015 to 2020, so there is an increment of the population of lion by 29%. क्योंकि 1990 में आप देख रहे हैं जो lions थे वो इंडिया में कम थे, 284 थे, अब वो बहुत बढ़ गए हैं.
और काफ़ी अच्छा encouraging रिजल्ट अब हमें देखने को मिला है. And not only their number has increased by 29%, but the distribution of area of the area of the loin around Saurashtra has also increased by 36%, which is a good sign. And there is a need to conserve the Asiatic loins, and there is need further to increase the area of the loin. And that is the reason Project Loin is going to be launched in India. अब हम आते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन पे. So gangetic dolphin is one of the principal indicator species. Now what is an indicator species? It is a species which indicates about the health of the ecosystem. तो एक बहुत ही प्रमुख इंडिकेटर स्पीशी मानी जाती है गैंगेटिक डॉल्फिन में. है तो होती है डॉल्फिन ही है, लेकिन ये गंगा की डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं. इसका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन. इसको साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं, रिवर डॉल्फिन भी कह सकते हैं. और इसके दो बेसिकल ग्रुप हैं. जो गंगा वाली है दैट इज़ नोन एज द गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, और साथ साथ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एरिया में पाई जाती है. और एक इंडस रिवर डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं जो पाकिस्तान की तरफ होती हैं इंडस रिवर में. दीज आर द लवली डॉल्फिन्स. नाउ अभी एक टर्म आया इंडिकेटर स्पीशी कि डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर स्पीशीज. एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, indicator species indicate the health of the ecosystem. So if there is some problem in ecosystem, so we can gauge it from the number, from the quality, from the quantity of the indicator species. तो इसीलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है क्या, ताकि इससे जो पानी जो इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम की हेल्थ बेटर की जा सके, क्योंकि ये एक बेसिक, एक प्रिंसिपल इंडिकेटर स्पीशी है. ऐसे जैसा कि बताया गया है कि जो इंडिकेटर स्पीशीज हैं, इफ़ दे आर इन एयर सो दे टेल द एयर क्वालिटी, इफ़ दे आर इन वाटर दे टेल अबाउट द वाटर क्वालिटी. जैसे कि आपने देखा कि वाटर के लिए इंडिकेटर स्पीशी है डॉल्फिन, जो वाटर क्वालिटी के बारे में बताती है. सिमिलरली देर आर सर्टेन इंडिकेटर स्पीशी विच टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एयर. लाइक लाइकेंस आपने सुना होगा, तो ये देख रहे हैं, दिस इज लाइकेंस. सो दीज लाइकेंस आर इंडिकेटर species and they tell how much sulfur dioxide is in the air. यानी जो वायु है वो कितनी सही है इसके बारे में बताती हैं. and the black spot fungus, so ये आप देख रहे हैं black spot fungus. अब if there is no black spot fungus on the rose, तो अगर ब्लैक स्पॉट फंगस नहीं है तो ये बताती है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है एनवायरनमेंट में. So gangetic dolphin is also categorized as endangered species by IUCN. तो इसको endangered सूची में रखा गया है. Next question is what are the endangered species? So it is a species which is likely to become extinct in the near future worldwide. तो जो endangered species हैं, ऐसी species हैं जो अभी ख़तरे में हैं और इनको केयर नहीं किया गया तो आगे जाके ये ख़त्म भी हो सकती हैं. Now what may be the reason of the a species becoming into endangered? So there are number of reasons जिसको बोला जाता है. Number one, H, that is habitat loss. यानी धीरे 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 इनके जो घर हैं, इनका जो आवास जो इनको चाहिए कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहा है. Habitat loss. Then the invasive species, यानी जब कोई विदेशी स्पीशी अगर आ जाए तो वो इनको नुकसान पहुंचा सकती है. याद रखिएगा, पहली बात है हैबिटाट लॉस, दूसरी बात है इन्वेजिव स्पीशी. नंबर पी इज़ पोचिंग. पोचिंग मतलब जो अवैध जो शिकार है उसके कारण भी नुकसान होती है. देन अनदर पी दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन. जब ह्यूमन बीइंग ओवर पॉपुलेट होते हैं तो आसपास वो धीरे 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 इन स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं. एंड अनदर रीज़न कैन बी ओवर ग्रेजिंग. तो इस तरह के these are the reasons of a species turning into endangered species, and this list is prepared by IUCN. Now what is IUCN? IUCN stands for International Union for the Conservation of Nature. एक संस्था है, एक बहुत बड़ा NGO है. This is the principal inventory of the species of the world. ये समझ लीजिए विश्व में जितनी भी स्पीशी पाई जाती हैं उनका ये लेखा जोखा रखता है. And it has made an inventory of more than 1,16,000 species.
धीरे धीरे पहले ये कोई 60,000 फिर 80,000 करते करते अब 1,16,000 स्पीशी को इसने एनालाइज कर लिया, अपनी इन्वेंट्री में शामिल कर लिया है। और ये जो संगठन है इट इज़ वर्किंग सिंस 1964 एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस। तो यही बताती है कि कौन सी स्पीशी जो है थ्रेटेंड स्पीशी है। एंड डियर फ्रेंड्स, इस तरह से रेड लिस्ट होती है IUCN की। और रेड लिस्ट में जो स्पीशी हैं आप देख रहे हैं, कुछ स्पीशी में भी एक्सटिंक्ट, यानी कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो कुछ सेंचुरीज पहले होती थी बट अब नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा डेड लाइक डोडो, एक प्रोवर्ब है, डेड लाइक डोडो, यूपीएससी में पूछा भी गया है। नो, व्हाट इज डोडो? सो डोडो वाज ए बर्ड जो कि अब नहीं रही, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सो देर इज़ एक्सटिंक्ट, दैन देर आर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी अब वाइल्ड में कुछ चीज़ें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जंगलातों में हो चुकी हैं, कुछ ही बची हैं ये। एंड इसकी जो अगली लिस्ट है उसको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन फिर एंडेंजर्ड स्पीशी, देन वल्नरेबल, देन नियरली थ्रेटन, देन लीस्ट कंसर्न, और एक अगला इसका लिस्ट होता है, इसको बोलते हैं डाटा डेफिशिएंट, जिसको इन ऑल दीज थिंग्स रेड लिस्ट वी विल स्टडी इन एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। सो डियर फ्रेंड, दिस इज द न्यूज़ that in India the project Dolphin and project Lion are going to be launched. It's really a great news for India for protect biodiversity and to encourage tourism. Thank you very much.